Hello dear students, welcome back to the Lada Public School online classes. This is Deepak Gandhar. I am your maths educator. Students, in previous video we have studied about multiplication and division of integers. Today we are going to study about some properties followed by addition and multiplication. So very first property is commutative property. Your next exercise is totally based on these properties. So commutative property. In 6th class also you have studied about the commutative property. What does commutative property say? Commutative property says that if we are changing the order of our operation, it will not affect your result. Then we can say operation is commutative. If I write here A plus B, it should be equal to B plus A. Then we can say addition is commutative. And yes, it is true. Just take example of integer -5 plus 2. It should be equal to 2 plus -5. Just solve it. -5 plus 2, the two integers are of unlike sign, they will subtract. It will give you 3 and -3. Why -3? Because we prefer the sign of greater integer. Take the right hand side, 2 plus -5, open the bracket, it will be 2 minus 5. The two integers are of unlike sign, again it will subtract, it will give you 3, and we will prefer the sign of greater integer. So it will -3. So -3 and -3. So we can say the addition of integers is commutative. Addition of integer is commutative. Your task is you have to check out whether the subtraction of integers is commutative or not. आप सोल्व करें और देखें तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि ये नहीं है. A माइनस बी एंड बी माइनस ए, ये दोनों ही रिजल्ट इक्वल नहीं आएंगे. देन वी कैन से सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. सो एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव. इसे हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. सो मल्टीप्लीकेशन में अगर हम देखें इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे, सो -3 इंटू -2, it should be equal to -2 into -3. Obviously the both sides are equal. 3 into 2 6 and positive 6. 2 into 3 is 6 and positive 6. That's why we can write here A into B is equal to B into A. So what is the conclusion? Conclusion is that addition and multiplication of integers are commutative, but subtraction and division are not commutative for integers. Second property is identity property. Identity means what? अगर मैं आपसे कहूँ write 2 in your copy, तो आप ऐसे लिखेंगे, या कहीं इसे देखते ही आप कहेंगे ये 2 है, या यहाँ पर अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो ये क्या है? 3 है. या आप आपके भाई को देखते ही पहचान लेते हैं, आपके दोस्तों को आप देखते ही से पहचान लेते हैं. तो इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी. सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ वी आर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन एंड द नंबर इज नॉट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी, देन वी कैन से द नंबर इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर अगर हम एडिशन करेंगे तो अब आप कहेंगे कि एडिशन करेंगे या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट तो चेंज होगा, फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? तो ऐसा नहीं है. अगर मैं यहाँ पर 2 में 0 को ऐड करूँ तो रिजल्ट 2 ही रहेगा, या मैं 3 में 0 को ऐड करूँ तो रिजल्ट 3 ही रहेगा. दैट्स व्हाई वी कैन से 0 इज additive identity.
ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। दैट्स वाई वी कैन से ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा हो सकता है कि हम कोई मल्टीप्लिकेशन करें और रिजल्ट में अपनी आइडेंटिटी चेंज किए बिना ही नंबर आ जाएं? जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो रिजल्ट 4 हो गया, आइडेंटिटी चेंज हो गई। हमारे पास 2 था, 2 की जगह क्या आ गया, 4 आ गया। लेकिन अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2 1 जा 2 ही आता है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कैन बी फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, एंड बाय दिस एग्जाम्पल वी कैन से 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है। सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब आगे से आप हमेशा ध्यान रखेंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी and 1 is multiplicative identity. Next property is associative property. In previous class we had studied about associative property, but for whole number. होल नंबर के लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है और वहाँ पर हमने देखा है कि होल नंबर का जो एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है। नाउ वी हैव टू find that whether the addition and multiplication of integers are associative or not. So first we have to understand what the associative property says. Associative property says that if we perform operation A plus bracket B plus C is equal to A plus B plus C. We all are familiar with this property. ज़्यादा कुछ समझने की बात है नहीं। हम कहें कि यहाँ पर एसोसिएशन अगर नंबर का किसी दूसरे नंबर के साथ होता है तो रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। देखिए पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड में B और C दोनों एक साथ एसोसिएट हैं, A ब्रैकेट के बाहर है। अब यहाँ पर दूसरे केस में A और B आपस में एसोसिएट हो गए हैं, C को बाहर कर दिया है, तो भी रिजल्ट आपका इक्वल आएगा। जैसे एग्जांपल ले लें 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4। 2 ब्रैकेट पहले सोल्व होगा, 3 and 4 7, 5 + 4 7 and 2 9, 5 and 4 9। दोनों ही तरफ अपना आंसर इक्वल आया है, तो इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो क्या यह प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए भी फॉलो होती है, हम यहाँ पर चेक करेंगे, देखते हैं इंटीजर्स के लिए फॉलो होती है कि नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, -5 + -3 + 2, ये इक्वल होना चाहिए किसके, -5 + -3 +2 के। दोनों ही साइड को हम सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। -5 + -3 + 2, एक इंटीजर आपका नेगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव है, तो ये इंटीजर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होने के बाद में साइन माइनस का लगेगा। क्यों लगेगा माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है। सो -3 + 2 1 और -1, दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 6 भी -6। अब चलते हैं अपन राइट हैंड साइड में, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। -5 -3, दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, लाइक साइन के हैं, सो -8 + 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, -8 + 2 -6। सो वी कैन से integers, addition of integers is also associate. Now same property will be followed by multiplication also. Distributive property.
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज़ वेरी इजी, नाम से ही पता चल जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है, जब भी कभी आपका बर्थडे वगैरह होता है तो आप टॉफ़ीज़ वगैरह ला कर आते हैं, आप टीचर से परमिशन लेते हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूट द टॉफ़ीज़ अमंग द स्टूडेंट। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बट जाना। सो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो is called distributive property. A can be any integer into b plus c. So we can write the same expression, a will be multiplied to b and a will be multiplied to c also. So a into b plus a into c. So we can say multiplication डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। ए आपका बाहर था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो बी से भी मल्टीप्लाई होगा, सी से भी मल्टीप्लाई होगा, इसे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एंड सेम थिंग ए क्रॉस बी माइनस सी, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। सो ए विल बी मल्टीप्लाइड टू बी, दिस माइनस साइन, एंड ए विल बी मल्टीप्लाइड टू सी। अगेन a into b plus a into c, and in this case a into b minus a into c. Please read about these properties at your maths book, page number 10, 11 and 12. It will be more clear to you. Exercise 1D, the first question is fill in the blanks and name the property used. So आप प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद में ये सारे फिलअप्स बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और ये सारे फिलअप्स सोल्व करने के बाद आप प्रॉपर्टी का नेम भी लिख सकते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है 11 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू -27 प्लस 11। आप राइट हैंड साइड में देखें -27 और 11 प्लस हो रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ये दोनों ही होना चाहिए, 11 प्लस -27, और ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन सेम वे यू कैन सोल्व ऑल द क्वेश्चंस, यू कैन फिल द ब्लैंक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव। क्या इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है? अगर नहीं करता है तो आपको एक एग्जांपल दे करके सपोर्ट में आंसर देना है। सो वी नो दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसके लिए हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं 2 - 3 एंड 3 - 2। 2 - 3 जब हम करेंगे तो -1 इज योर आंसर, और 3 - 2 जब करेंगे तो +1 इज आवर आंसर। क्या -1 और +1 इक्वल है? डेफिनेटली नॉट, -1 इज लेस देन 1, so our answer is not equal. That's why we can say subtraction of integers does not follow commutative property. Question number 3, find the value of 8792 into 997 minus 792 into 997। यही क्वेश्चन क्लास 5th का स्टूडेंट भी सोल्व कर सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करना है। कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं? जब सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में अपने को दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन का साइन और सब्ट्रैक्शन का साइन, तो इस टाइप की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और हमने ये भी देखा है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर यही हो रहा है, 997 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 997 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a इंटू बी माइनस सी एक्सप्रेशन अगर है तो वो से हम ए बी माइनस ए सी लिख सकते हैं। a एक इंटीजर है जो कि दोनों जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 997 a की तरह बिहेव कर रहा है, सो 997 को हम बाहर लिख सकते हैं। 997 इस फॉर्म में आएगा। यहाँ से क्या बचा? 8792, यहाँ से क्या बचा? माइनस साइन, यहाँ से क्या है? 792। वापस से देखें, 997
यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 997 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो क्या कहती हैं, a जो कि एक इंटीजर है b माइनस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब्ट्रैक्शन पर। सो a इंटू बी एंड a इंटू सी। a की जगह अपने पास है 997, 8792, 792. Now solve first bracket. 8792 minus 792, it will give you 8000. Now we can multiply. 8 will be multiplied to 997 and we will add 3 more zeros. 8 7 ja 56, carry 5, 8 9 ja 72 plus 5 77, carry is 7, 8 9 ja 72 and 7 79, and add 3 zeros of 8000. This is your answer. Now additive inverse. Additive inverse क्या होता है? Additive inverse is the number, if we add the number to the given number, the result will be 0. मीन्स आपको अगर कोई भी नंबर दिया गया है 5, जैसे 5 मैं कहूँ यहाँ पर, और इसका मैं कहूँ कि एडिटिव इन्वर्स पता करें, तो आपको यहाँ 5 में एक ऐसा नंबर प्लस करना पड़ेगा कि रिजल्ट 0 हो जाए, उसे ही हम 5 का एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। तो 5 में हम क्या ऐड कर सकते हैं, -5, तभी तो दोनों मिलकर के 0 होंगे। सो व्हाट विल बी द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 इज -5। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए तो आप जस्ट उसका नेगेटिव या अपोजिट साइन वाला नंबर बता दें। जस्ट लाइक व्हाट विल बी द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 15, आंसर इज -15। व्हाट विल बी द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5, और आंसर इज -5। व्हाट विल बी द एडिटिव इन्वर्स इज -23, इज 23। एंड व्हाट विल बी द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 इज 0, because it is already 0. Okay, thank you so much. Now you can solve your exercise 1D and you can ask your queries personally. Thank you. See you in next video.